This is my fourth lecture on group theory. I have already told you about group and some properties of group and some types of group and such as uh, Z group and UN group, group of matrix. Okay, so I have already discussed and some I have already discussed about some previous year questions. Okay, okay. So today we will talk some facts. Okay, so this lecture is short. Okay, I will told you only some facts and I will told you how to find how to construct the Kelly table, how to construct the Kelly table. Okay, so and also we talk about Klein 4 group. You know very well about Klein 4 group. You know very well it is a group. Also it is an abelian group. Okay, so I will told you about some properties. I will told you about some properties of abelian group and group. Okay, so today we will talk about Kelly table. Okay, so we will talk today we will talk about Kelly table and we will talk some properties of group and we will talk abelian group, some properties of abelian group. Okay, okay. So which are very important. Okay, so we will talk some properties. Okay, which are very important. Okay, so I will told you. So first we talk about a Kelly table, how to construct a Kelly table. Okay, so I have told you about an UN group. Okay, so we take an example. Okay, UN suppose we take a U12. Okay, so U12 is equal to the UN group. This is an UN group. So the element of U12 will be 1 and 5, 7 and 11. Okay, these are the these are the elements of U12. Okay, so now I will tell you. Question is that find the Kelly table. Okay, so in the IIT JAM. Okay, and IASC, NVHM, UPSC. Also UPSC can ask from this question. Okay, from such type of questions. Okay, and other central universities and state universities also can ask such type of questions. Okay, so in the IIT JAM. Okay, if it is given and some element of the table are given. Okay, suppose 1 5 7 11 and 1 5 7 11. Okay, suppose some element of Kelly table are given, but find the other element. Suppose it is given, 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 and so, but it is not given. It is not given. Okay, so how to find these elements? How to find these elements? Okay, so I will told you how to construct a Kelly table. Okay, so in IIT JAM can be asked. IISc also asked this question. IISc and IIT JAM also asked this question. Okay, so I will told you. ये है क्या? कुछ लोगों को कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है. मैं इंग्लिश के दोनों में पढ़ाऊंगा. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखो नाउ. अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ मल्टीप्लाई बाई 1 to 1 1 1 1 5 1 7 1 11. सिमिलरली 5 1 जा 5 5 5 का 25 एंड 5 का इसमें ऐसे ऐसे मतलब हम करते रहते हैं. जैसे 1 का इसमें फिर इसका इसमें जैसे 1 5 1 1 जा 1 5 जा 5 सॉरी 1 1 जा 1 एंड 1 7 जा 7 and 1 11 11. Okay, now multiply with 5 each element of row. Okay, so
5 वन जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा, नाउ मल्टीप्लाई 5 इन 5, क्या करते हैं 5 को मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 5 में, तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। अब इसमें 12 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर मिलेगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 1 रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसका 5 को मल्टीप्लाई करो 7 में, तो 5 7 जा 35, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, दो 11 मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 11। सिमिलरली 5 का 11 में, तब मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, तो 55 हो गए, 5 का 11 में करूँगा तो मल्टीप्लाई, तो इसका 12 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 7, ओके। तो मुझे कितना रिमाइंडर कितना मिलेगा 7, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, ओके, नॉट द डिवाइडेड, ओके। नाउ सिमिलरली अब 7 से मल्टीप्लाई करना है मन में, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 35 में हमने 12 से डिवाइड किया तो 11 क्या मिला मुझे, रिमाइंडर मिला। सिमिलरली 7 का 7 में करना है, 7 7 जा 49, और 49 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा 49, और 49 में मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करने में कितना मिलेगा मुझे 1, ओके, तो 1 मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो क्या बचा, सिर्फ 5 होगा ना, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है। ऐसे 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, और 55 1, सिमिलरली 5 का 7 11 11 7 जा 77, और डिवाइडेड बाई 12, सो वी फाइंड 5, okay, because if we multiply 5 and 12 6 are 72 and 72, okay, so हमें 72, okay 6, so 72, so we find remainder 5, okay, remainder कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा मुझे, 5 remainder, सॉरी remainder 5 हो गई बोला, ठीक है। 11 11 जा, ठीक है, 121, और 121 में मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो मिलेगा एलिमेंट 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिलेगा, मतलब ये रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये रिमाइंडर आया, ठीक है, नॉट दैट डिवाइडेड, ओके, ये रिमाइंडर है, ठीक है। इसमें एक आया, ठीक है, यहाँ पे भी ये आ गया, ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये दिस इज द प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट द कैली टेबल, ओके। सबसे पहले करते क्या है, जो 12 होता है उस 12 को यहाँ पे फाइंड आउट करो, राइट कर रहे हैं 1 5 जो एलिमेंट है उसको इस टाइप इधर रो में, और एक 1 कॉलम में, ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, इस टाइप का कोई ड्रॉ कर लो। 1 का इसमें 1 का इसमें, और ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये मिलेगा मुझे। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे। ये कहाँ से मिलेंगे, आफ्टर रिमाइंडर, ओके, आफ्टर रिमाइंडर। सिमिलरली इस तरीके से इसका इसमें फिर पूरी रो में, ठीक है, इस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्टेबल मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कैली टेबल को, ओके। IIT जब में और IASC ने एक बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पूछ ही सकती हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी तो औकाती नहीं कि जब मैं इतना पढ़ा दूँ और एक भी क्वेश्चन आउट हो जाए, ठीक है। और जो बच्चा IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हवा होगी मेरे पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद, ठीक है। You know very well about me, okay. I have gotten in IIT JAM 210, okay, and DU 37 and 7, and AMU and 37 rank. IIT JAM and DU and AMU, okay, but I have not given the exam of BHE, okay. मैंने उसका BHE का एग्जाम दिया नहीं था इसमें, ठीक है। तो मैंने यही 3 एग्जाम दिए थे, तीनों ही मैंने क्वालिफाई किए, ओके। इन IIT JAM में इतनी रैंक थी मेरी, DU में 7 रैंक थी, और 37 AMU में थी, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्चुअल बात करते हैं, कुछ फैक्ट लिखाते हैं, ठीक है, फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो सॉल्व करिएगा, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई UN ग्रुप है, ठीक है, और UN में मेरे पास वो है 10, U10 इज इक्वल टू 1 3
and it will be 7 and it will be 9. Okay, so that it is commutative. Is it commutative? Commutative, that is abelian. Commutative means abelian. Okay, विद रेस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पे जो मॉडुलो कितना है, मॉडुलो कितना होगा यहाँ पे 10 होगा ना. ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो. ठीक है, ये चेक करना है क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, अबिलियन है या नहीं, चेक करो. ठीक है, दैट इज कम्यूटेटिव है या नहीं, चेक करना है आपको. एक बार IIT जन ने शायद 2009 में पूछा था शायद, कंफर्म मुझे याद नहीं, IIT जन ने इसको पूछा. ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा अभी फैक्चुअल पे अभी कुछ फैक्ट्स लगाने हैं मुझे. ठीक है, पहले थोड़ा सा क्लेम ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दूं. ठीक है, प्लेन्स 4 ग्रुप. ओके, तो ये ग्रुप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा, इसका जो इसको इस तरीके से G इज इक्वल टू E A B A B. ओके, वेयर A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू E एंड A B इज इक्वल टू B A. इस टाइप का ये ग्रुप होता है. एंड G इज अबेलियन ग्रुप. G इज अबेलियन. ओके, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ऑपरेशन कौन सा होता है, बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ओके, जब अबेलियन ग्रुप होता है अपने आप में. ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, कुछ फैक्ट लिखने हैं आपको, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, जिनका यूज आप करेंगे आगे और हम भी करेंगे. ठीक है, अच्छा ये बताइए सेमी ग्रुप के बारे में आपको पता ही होगा, कुछ फैक्ट्स लिखने हैं हम. ठीक है, तो फैक्ट्स तो अब ये लगा लो कि स्टार्टिंग हुई है फैक्ट की, इतने फैक्ट लिखा हुआ और हर एक फैक्ट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो IIT JEM, IISc, DU, BHU, AMU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सबने पूछा हो. ऐसे फैक्ट पे डिस्कस जरूर करें हम. एक भी फैक्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो जिसपे क्वेश्चन ना बना हो. ठीक है, हर फैक्ट के लिए हम हर फैक्ट पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले सेमी ग्रुप के बारे में पता ही होगा आपको, जो कि एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे. ठीक है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट. क्वेश्चन इज दैट बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट. पता है आप लोगों को, पता है तो कमेंट में बताइए, क्या बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, नहीं होता, और होता है तो यस और नहीं होता तो फिर नो. ओके, प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट. ओके, सो नाउ अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 फैक्ट में. ठीक है, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, सॉरी ये फाइनाइट सेमी ग्रुप, a finite semi group is a group if the both if and only if the both cancellation law holds. ठीक है, और दोनों जो कैंसिलेशन लॉ है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, वो होल्ड हो जाए तो क्या कहेंगे, वो ग्रुप सेमी ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा, वो सेमी ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो सेमी ग्रुप था वो मेरे क्या हो जाएगा, अगर कोई सेमी ग्रुप है मेरे पास. ठीक है, जैसे हमारे को शायद जेडन डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक सेमी ग्रुप होता है. सेमी ग्रुप होता है कि मोनोइड होता है, सेमी ग्रुप भी होता है ये. ठीक है, तो जेडन, अब सपोज करो इसमें जो लेफ्ट जो कैंसिलेशन लो है दोनों, ठीक है, वो होल्ड हो जाए दोनों, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट दोनों होल्ड हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि अपने आप में क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा. तो इट इज इंप्लाइज ए ग्रुप, ये ग्रुप हो जाएगा अपने आप में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, क्या हो जाएगा अपने आप में, ग्रुप हो जाएगा.
ठीक है, ये फैक्ट हो गया। अच्छा आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, ठीक है, बट ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डबल ले लिया है, ओके, दिस होल्ड फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, बट इट इज नॉट ट्रू, फॉर इनफाइनाइट सेमी ग्रुप. It is for only finite semi group, but it is not for infinite semi group. Okay. अब वो मेरे पास फाइनाइट सेमी ग्रुप है, अगर उसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, वो ग्रुप क्या हो जाएगा, मेरा सेमी ग्रुप हो जाएगा. बट ये जो कंडीशन है ये वाली, ठीक है, सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप व्हेन ओनली बोथ कैंसिलेशन होल्ड हो रहे हैं, तो ये जो इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए कैंसिलेशन लॉ मतलब होल्ड नहीं होंगे. इसका मतलब क्या है, जो ये जो प्रॉपर्टी है वाली, a finite group a finite semi group is a group when if the both cancellation law hold. और फाइनाइट ये जो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होंगे वो सेमी ग्रुप में होंगे, इसका मतलब इसमें नहीं होंगे. ठीक है ना, होंगे भी या नहीं होंगे इस बात का पता कर लीजिए. देखो है क्या, ये जो प्रॉपर्टी है वो इनफाइनाइट सेमी ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये है. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट सेमी ग्रुप के लिए होल्ड नहीं होती है. ठीक है, ये है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट. Okay, you know that a finite semi group is a group if and only if G is satisfy both cancellation law. Okay, तो ये मैंने बता दिया. Okay, and एक और लिख लीजिए, एक ग्रुप इज if G is abelian, सपोज करो G is abelian, कैसा है, अबेलियन ग्रुप है मेरा. ठीक है, G is abelian. ओके, इफ G is abelian देन AB की पावर होल पावर n, AB होल पावर n इज इक्वल टू an bn फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू G. ओके, कब होल्ड होगी वाली कंडीशन, जब G मेरा क्या है, अबेलियन ग्रुप. अगर G अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन यू नो वेरी वेल अबाउट द अबेलियन ग्रुप. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द अबेलियन ग्रुप. अगर ये G अबेलियन ग्रुप है मेरा तो इसका मतलब क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी. ठीक है, सेकंड इज दैट एक ग्रुप, सपोज करो कि कोई ग्रुप है मेरे पास G. ठीक है, और सपोज करो A बिलोंग्स टू G है. अगर सपोज करो A स्क्वायर इज इक्वल टू E है, A स्क्वायर इज इक्वल टू E है, इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाइज करेगा कि G इज अबेलियन. मैं बताऊंगा वैसे ए स्क्वायर ई का मतलब क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर ई का मतलब है कि जो ए का जो ऑर्डर है वो ई है, मतलब ए का ऑर्डर कितना है, 2 है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जी अबेलियन. वैसे हम ऑर्डर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, और एक बात और, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से मिनिमम हर साल एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ठीक है, और मैं जितने अब तक के क्वेश्चन आ चुके होंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से, ठीक है, जितने भी रिलेटेड आजू बाजू के जितने क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उतने मैं क्वेश्चन बनाऊंगा. और जितने अब तक IISc, IIT JEM और NBHM, UPSC और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी AMU, BHU और DU ने जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे सेंट्रल और ग्रुप से, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, वो उन सभी को उस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे हम लोग, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए देखेंगे किस टाइप के मतलब क्वेश्चन उससे बनते हैं. ठीक है, उससे देखो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जेड. जैसे ये जेड दे रखा है मेरे पास, इसका कोई इस साइड हो गया विथ मॉडुलो एन प्लस मॉडुलो एन. ठीक है, या फिर UN हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे. ठीक है, अब तो इसमें जो एलिमेंट है इसमें, अब देखो कोई एलिमेंट ले लिया इसमें से, इसका अब पूछा कि इसमें जो कोई एक्स एलिमेंट ले लिया तो इसका ऑर्डर बताइए इस ग्रुप में. कोई एलिमेंट ले लिया मैंने बाई, इस ग्रुप का ऑर्डर बताइए इस एलिमेंट इस ग्रुप में. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं ग्रुप से बनते हैं, IIT JEM और IIT और जो IISc है. ठीक है, या फिर DU है, BHU है एंड AMU है. ठीक है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है तो ज़्यादातर इन्हीं ग्रुप से क्वेश्चन पूछ लेती है. सिर्फ 2 ग्रुप से, इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया था पिछले लेक्चर में, इन दोनों को मैंने डिस्कस किया था.
किन में कैसे एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में, इनकी नेचर कैसी होती है, सब कुछ मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था अलग से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने अपने देखा है, मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा एक और फैक्ट लिख लीजिए, सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ओके देखो है क्या, थर्ड है, सपोज करो जी इज ग्रुप एस, अगर इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने जी है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है मेरा, ए बिलोंग्स टू जी, अगर जी मेरा अबेलियन है, जी क्या मेरा अबेलियन है, अबेलियन नहीं अभी नहीं कह रहा मैं, अगर सपोज करो कि जो ए का इनवर्स है वो ए के इक्वल है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब सेल्फ जो ए है एलिमेंट, ए जो एलिमेंट है वो सेल्फ का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। जैसे सपोज करो किसी ग्रुप में 2 एलिमेंट है, तो 2 क्या अपने आप में एक इनवर्स भी है 2 का, तो मैं क्या कहूँगा, जो देन दिस इंप्लाइज ग्रुप जी इज अबेलियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देन ग्रुप जी इज अबेलियन। Okay, so statement is that if every element of a group G is out similar, it's out inverse. Okay, if every element of a group G is its own inverse, then G is abelian. अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट का, अगर कोई ग्रुप है मेरे पास और उसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ऑन इनवर्स, अब अपने आप में क्या एक इमेज है अपने आप की। ठीक है, तो क्या ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा, अबेलियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप, एक और है। ठीक है, ठीक है, यही था आज का। ठीक है, अब तक मैंने जो कुछ भी कराया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने बता दिया आपको क्यों, क्योंकि आईएएससी हर बार IIT जेम और आईएएससी और NBHM DU BHU ये पूछते ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पूछे ही हर बार। ठीक है, IIT जेम के लिए तो हर बार क्वेश्चन वहाँ से बनेगा ही। ठीक है, तो इसलिए अगला वाला लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। कुछ हमारे स्टूडेंट तो हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो बता देते भैया शेयर करने पे। ठीक है, आप भी जो नए लोग हैं हमारे, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग।